Good morning, children. Myself, Karunesh Badoria. Welcome to physics class. Children, today in this video, I am taking some numerical problems related to equation of motion and relative velocity also. Okay. So, here I am taking this one numerical problem. Question is this: a ball is thrown vertically upwards with a speed of 19.6 meter per second from the top of a tower, return to the earth in 6 seconds. Find the height of the tower. Yes, ball is thrown vertically upwards from a top of tower. So, see the diagram. Suppose this is a tower. A ball is thrown vertically upward from the top of tower. From this point, a ball is thrown vertically upward like this, and at maximum height, after that it come back to the ground. This is the path of ball, and this is, suppose this height is h, this is tower. Okay. Vertically upward with velocity, initial velocity u equals to 19.6 meter per second. This is the initial velocity. Ball is thrown from this point. Suppose this is A point, this is B point, maximum height at C point, and this is also again A point, or we can say like D point also. Okay. This is tower. Now I think question is clear. Ball is thrown from this point at point B vertically upward. So first of all, ball reach at the highest point and then come back to the ground. It takes total time 6 seconds from point B to C and then C to D. Total time taken by the ball is 6 seconds. So initially, what is given? Initial velocity u is equals to 19.6 meter per second. This is initial velocity, and time taken 6 seconds. This is the time from B to D. Okay. Now distance, particle start or ball start from B point and come back to D point. So this displacement is this. This is the displacement, and this displacement is h, height of the tower. So distance or displacement is equals to h. This is h. Direction of velocity, direction of initial velocity is vertically upward and displacement is downwards. So we can take here minus h. This is minus. Minus sign shows that the direction of displacement is a vector quantity, direction of displacement and direction of initial velocity both are different. So we take minus h. And acceleration E equals to minus g. Why? Direction of initial velocity is upward, and you know the gravity always downwards. Both are in different direction. So A equals to minus g. We have to find the value of h. So using which formula? Second equation, s is equals to ut plus half of at square. From second equation of motion, second equation, s equals to ut plus half of at square. By using this equation, we can calculate the value of h. So displacement, this is minus h
द वैल्यू ऑफ u, व्हाट इज u? 19.6 मीटर, 19.6 मीटर इंटू t, व्हाट इज t? 6 सेकेंड, माइनस क्यों? क्योंकि g इज नेगेटिव, सो माइनस 1/2 इंटू वैल्यू ऑफ g 9.8, 9.8 into t square, what is t? T is given by 6, so this is 6 square. Clear? Using this equation, s is equals to ut plus half of 80 square, putting all the values, ये चीज़ आपके सामने आ गई. Now find the value of h from this equation. So minus h 19.6 into 6 माइनस ये 36 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 18, 9.8 इंटू 18 कैसे आया? 36, 2 से कट करेंगे 18, ये 6 जा 36 और इस 2 से कट करेंगे तो 18 हो जाएगा, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 18 पुट किया. ओके, वैसे तो मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें, लेकिन थोड़ा दूसरा तरीका ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं इसमें से. 9.8 2 जा 19.6 होता है, तो इसमें से 9.8 इंटू 6 कॉमन ले लिया मैंने. मल्टीप्लाई करके भी आंसर आ जाएगा, बट यहाँ पे कॉमन लेके मल्टीप्लाई से बचने के लिए, तो यहाँ 8 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा माइनस, और ये पूरा बाहर आ जाएगा 6 3 जा, दिस इज़ कितना हो जाएगा? 8 6 जा 48, 4 कैरी, 9 6 जा 54, 54 और 4 58, 58, 1 के बाद डेसिमल, और दिस 2 - 1 इज़ -1, सो दिस इज़ -58.8. इधर माइनस कैंसिल, सो h इक्वल्स टू 58.8 मीटर. दिस इज़ द हाइट ऑफ द टावर. ओके, सो इसमें पूछा था फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. द हाइट ऑफ द टावर, दिस हाइट विल बी 58.8 मीटर. क्लियर? क्वेश्चन क्लियर है? क्या इसमें लिखा है? बॉल इज थ्रोन वर्टिकली फ्रॉम दिस पॉइंट. ये टावर है, यहाँ से खड़े होकर बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया, एंड 6 सेकेंड बाद ये बॉल कहाँ आ जाती है? ग्राउंड पे आ जाती है. ऐसे आएगी मैक्सिमम हाइट, देन टू द ग्राउंड. ओके, टाइम कितना है इसमें? 6 सेकेंड. इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है, कितनी है? 19.6 मीटर पर सेकेंड. इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, टोटल टाइम टेकन गिवन है, डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? अब यहाँ से थ्रो किया और ग्राउंड पे आता है तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा. जिस टावर पे खड़े होकर थ्रो कर रहे हैं ऊपर को वर्टिकली, वो जो हाइट है ना उसकी, दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट. बट दिस विल बी नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट. क्यों नेगेटिव क्यों लेंगे? क्योंकि वेलोसिटी अपवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड्स है, सो वी टेक माइनस साइन. क्लियर? एंड इन दिस सिचुएशन एक्सीलरेशन ऑल्सो विल बी नेगेटिव. क्यों? ग्रेविटी डाउनवर्ड्स लगती है, वेलोसिटी अपवर्ड है, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, सो a इक्वल्स टू -g. ये आपको यूज़ करना है. सेकेंड इक्वेशन हमने ले ली यहाँ पे, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और ऑल वैल्यूज़ वी पुट हियर, तो आपको सॉल्व करते करते ये आ जाएगा. ओके, नोट करें इसको. इसके बाद दूसरा क्वेश्चन लेते हैं. यस, नोट कर लिया. ये सेकंड क्वेश्चन मैंने लिख दिया यहाँ पे, इसको मैं रफ कर देता हूँ. नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन on the blackboard. Yes, what is the question? Look here, a ball thrown up, see, a ball thrown up is caught by thrower after 4 seconds. How high did it go and what velocity was thrown? How far was it below the highest point 3 seconds after it was thrown? 2-3 चीज़ें इसमें पूछी गई आपसे कि बॉल को अप की तरफ वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया और वापस इसको 4 सेकेंड में इसको कैच किया जाता है. मीन्स ग्राउंड से हाईएस्ट पॉइंट तक जाएगा एंड वापस ग्राउंड तक आने में जो टाइम टेकन है, दिस इज़ 4 सेकेंड. क्लियर?
किसी बॉल को आपने थ्रो किया एंड वापस कैच किया, तो मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम एंड वापस मैक्सिमम से टू द ग्राउंड तक आने का टाइम, दिस इज़ 4 सेकेंड, राइट। चलिए, एंड अगर ये है, इसके बाद इन्होंने पूछा बताइए बॉल मैक्सिमम हाइट क्या गेन करेगी और किस वेलोसिटी से आपने इसको थ्रो किया है। 2 चीज़ें, और एक तीसरी चीज़ और पूछी है कि 3 सेकेंड के बाद वो टॉप से कितना बिलो होगा, राइट। अगर मैं इसके डायग्राम की बात करूं तो सी द डायग्राम, लुक हियर, सपोज दिस इज ग्राउंड, ओके, A point, a ball is thrown vertically upward, this is the direction, and come back to the ground again. A point, B point, maximum height, and C point. Clear? Ball thrown vertically upward with velocity u. U is not given here, बल्कि ये आपको फाइंड करनी है किस वेलोसिटी से इसको थ्रो किया गया। टाइम टेकन फ्रॉम A to B एंड B to C, ये गिवन है 4 सेकेंड। सो राइट डाउन हियर, टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड, टोटल टाइम 4 सेकेंड। देखिए A to B एंड B to C का टाइम 4 सेकेंड है, इट मीन्स टाइम टेकन बाय फ्रॉम A to B इसका हाफ हो जाएगा। एक बात याद रखो, जितने टाइम में कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड से ऊपर जाएगा मैक्सिमम हाइट तक, मैक्सिमम हाइट से वापस ग्राउंड तक आने में सेम टाइम लगता है। तो जो टोटल टाइम है यहाँ 4 सेकेंड का, दिस टाइम इज़ डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, टाइम टेकन बाय टू रीचिंग एट द हाइएस्ट पॉइंट एंड टाइम टेकन टू कम बैक टू द ग्राउंड। सो 2 सेकेंड जाने में और 2 सेकेंड आने में। ओके, A to B तक जाने का टाइम, टाइम फ्रॉम A to B, दिस इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, ठीक है, A से B तक जाने का। और मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम हाइट पर द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी होती है, 0। एट B, एट पॉइंट B, वेलोसिटी v इक्वल्स टू 0। अब देखिए, मैं बात करूंगा अपवर्ड मोशन की। सी हियर, फॉर अपवर्ड मोशन, क्वेश्चन को समझना है, रटना नहीं है किसी को। यहाँ पे ये देखना है आपको, 2 तरह के मोशन है, अपवर्ड मोशन एंड देन डाउनवर्ड मोशन। दोनों में आपको इक्वेशन यूज़ करनी है। तो पहले अपवर्ड मोशन की मैं बात कर रहा हूँ। अपवर्ड मोशन मीन्स फ्रॉम A to B। इस A to B मोशन में व्हाट इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, डोंट नो, सो क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज़ द फाइनल वेलोसिटी, 0। क्यों 0 है, एट द हाइएस्ट पॉइंट वेलोसिटी इज 0। टाइम टेकिंग टू A to B 2 सेकेंड। क्लियर? अब क्या चाहिए आपको, एक्सेलरेशन, दिस इज -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों माइनस है, वेलोसिटी ऊपर की तरफ, ग्रेविटी डाउनवर्ड्स, साइन अपोजिट होगा, राइट। और अब आपको इसमें u फाइंड करना है। विच इक्वेशन यू कैन यूज़, v इक्वल्स टू u प्लस a t, और वी कैन से g t, g की वैल्यू माइनस में आ जाएगी, राइट। v इक्वल्स टू u प्लस जी टी। सो द वैल्यू ऑफ v 0, वैल्यू ऑफ u u माइनस व्हाट इज g 9.8 इंटू t इज़ 2 सेकेंड। ट्रांसफ़र कीजिए, सो u की वैल्यू आ जाएगी 9.8 टू जा 19.6 मीटर पर सेकेंड। एक आंसर आ गया, 19.6 मीटर पर सेकेंड। दिस इज़ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल। बॉल है यहाँ पे, यस, मीन्स बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ दिस वेलोसिटी, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी। अब आपको देखना है कि मैक्सिमम हाइट कितनी हो रही है यहाँ से यहाँ तक जाने में, ये क्या हाइट गेन कर रही है ना। सो
Now using second equation, of motion, s equals to ut plus half of gt square. This is second equation. मैं यहाँ पे क्या फाइंड कर रहा हूँ? हाइट, मैक्सिमम हाइट ऑफ द फ्रॉम द ग्राउंड टू द हाईएस्ट पॉइंट. दिस इज h. ये आपको पता करनी है. सो h इक्वल्स टू u आपको पता है 19.6. टाइम कितना लग रहा? 2. माइनस लगेगा क्योंकि मोशन अपवर्ड है, ग्रेविटी डाउनवर्ड्स है. सो माइनस साइन 1/2 इंटू जी. व्हाट इज जी? यू नो 9.8. एंड टी स्क्वायर, व्हाट इज टी? 2 सेकेंड. स्क्वायर इज 4. कट कीजिए, ये आपका 2 टाइम्स h इक्वल्स टू 19.6 इंटू 2 माइनस 9.8 टू जा 19.6. सो 19.6 इज कॉमन. 19.6 इज कॉमन. 2 minus 1, 2 minus 1 is 1. This is h equals to 19.6 meter. The maximum height in this question, maximum height is 19.6 meter. Clear? ओके, 2 चीज़ें आ गई आपके पास. 19.6 मीटर. अब इन्होंने कहा है कि आफ्टर 3 सेकेंड पार्टिकल मैक्सिमम हाइट से कितना ब्लो होगा, कितना नीचे होगा. देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम कितना है? 2 सेकेंड. और 3 सेकेंड के बाद इन्होंने पूछा है हाउ फार वॉज इट ब्लो द हाइएस्ट पॉइंट 3 सेकेंड आफ्टर इट वॉज थ्रोन. थ्रो करने के 3 सेकेंड के बाद, थ्रो करने के 2 सेकेंड बाद यहाँ आएगा. 3 सेकेंड के बाद वो यहाँ कहीं होगा. सपोज दिस पॉइंट, दिस इज़ डी पॉइंट. यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम 3 सेकेंड हो गया. ओके, 3 सेकेंड के बाद जब वो यहाँ होगा तो मैक्सिमम हाइट से कितना ब्लो होगा, कितना नीचे ही आएगा, ये आपको पता करना है. अब मुझे ये हाइट मालूम है, a to b मालूम है, b to या a to d पता कर लेते हैं. a to d पता कर लेते हैं. अगर ये पता चल गया तो इसमें से पहले वाली हाइट को माइनस करेंगे, ये आपको मिल जाएगी. राइट? तो अब हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल इन 3 सेकेंड. डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल इन 3 सेकेंड. ओके, तो सी हियर, नाउ डिस्टेंस covered by ball in 3 सेकेंड. 3 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस बॉल कवर करेगी? तो फॉर्मूला वही रहेगा ये वाला. इसमें डिस्टेंस आपको मिल जाएगी. देखिए s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर. h इक्वल्स टू, इसका नाम कुछ और रख देते हैं, h डैश. ये डिस्टेंस 3 सेकेंड की डिस्टेंस को मैंने h डैश, उसकी हाईएस्ट डिस्टेंस को h नाम दे दिया था, इसको h डैश नाम दे रहा हूँ. यू टी, व्हाट इज़ u? 19.6. ये आपने अभी फाइंड की थी. 19.6 एंड टाइम यहाँ से यहाँ तक का टाइम 3 सेकेंड की बात कर रहा हूँ. दिस इज़ 3 माइनस 1/2 9.8 इंटू 3 स्क्वायर, 3 3 जा 9. ये वैल्यू पुट कर दी मैंने. h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. u इज़ 19.6, t इज़ 3 सेकेंड, माइनस साइन लगेगा 1/2 एज इट इज़. g की वैल्यू रख दी t स्क्वायर 9.8, ओ सॉरी 9, क्योंकि t यहाँ पे 3 सेकेंड है. ओके, समथिंग इज़ कॉमन हियर. क्या ले सकते हैं कॉमन? 9.8 इसमें है, इसमें भी है 9.8. सो 9.8 इज़ कॉमन. 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, 3 इज़ ऑल्सो कॉमन. क्या बचेगा? डिवाइड करेंगे, ये 2 टाइम्स माइनस ये बाहर आ गया. 2 डिनोमिनेटर में 3 डिवाइड करेंगे, 3/2. राइट? 2 2 जा 4, 4 माइनस 3 1, 1/2 बचेगा. क्या बचेगा? 1/2. 9.8 इंटू 3 इंटू 1/2.
2 2 जा 4, 4 माइनस 3 1, 1/2। ओके, इसको कट कीजिए, दिस इज़ 2 4 जा 8 और 4.9 आएगा। सो दिस इज़ 4.9 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 9 3 27, 2 कैरी, 4 3 जा 12, 12 और 2 14, 14.7 मीटर। ये एच डैश की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? एच डैश। अब मैं डायग्राम रफ कर रहा हूँ। ओके, सो यहाँ एच डैश इज इक्वल्स टू 14.7 मीटर। दिस इज एच डैश। हाईएस्ट कितनी थी? 19.6। और एच डैश जो घूम करके वापस नीचे आ रही है, तो ग्राउंड से इसकी हाइट ये आ रही है। तो ऊपर से अगर हम निकालेंगे हाईएस्ट में से इसको माइनस कीजिए। सो जो इन्होंने लिखा है, हाउ फार वाज द ब्लो द हाईएस्ट पॉइंट 3 सेकेंड आफ्टर इट वाज थ्रोन। सो रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो इस क्वेश्चन में पूछी गई है, रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 19.6 मीटर माइनस 14.7 कितना आएगा? 16 9 8 में से 4 जाएगा 4.9 मीटर। दिस इज़ द फाइनल आंसर। 9 सर 16, 8 माइनस 4। ओके, सो 4.9 मीटर इज़ द आंसर ऑफ दिस थिंग। ओके, सो नोट कीजिए इसको भी। Yes, children, have you noted? See question number 3rd. Yes, I have written this question number 3rd. So first of all, rough this question. Question number 3rd. Very interesting question is this. 2 balls are thrown simultaneously. See the question. 2 balls are, question number 3. 2 balls are thrown simultaneously, a vertically upward with the velocity 20 meter per second from the ground, and B vertically downwards from a height of 40 meter with the same speed and same line. At what time do they meet? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। There are 2 balls, एक सर्टीन हाइट, ग्राउंड से 40 मीटर की हाइट पर, एक बॉल यहाँ से और एक बॉल ग्राउंड से एक साथ थ्रो की जाती है। ऊपर से इसको थ्रो किया सेम स्पीड से, जो भी गिवन है यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड से इसको, और ग्राउंड से भी 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया गया वर्टिकली अपवर्ड। एक बॉल को अपवर्ड, दूसरे बॉल को डाउनवर्ड्स। तो दोनों बॉल्स कहीं ना कहीं मीट करेंगी। हमें बताना है कि वो कब और ग्राउंड से किस हाइट पर मीट करेंगी। अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो डायग्राम इसका इस तरह से हो सकता है। दिस इज़ वर्टिकली को क्या लिया हमने? ए पॉइंट, वर्टिकली अपवर्ड। सो दिस इज़ ए पॉइंट, दिस इज़ बी पॉइंट। ओके, 2 बॉल्स, फर्स्ट बॉल, सेकेंड बॉल्स, ये वर्टिकली अपवर्ड with velocity क्या 20, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, और इसको भी डाउनवर्ड्स, इनिशियल वेलोसिटी सेम 20 मीटर पर सेकेंड। एक ही लाइन में, अगर इसको इधर से थ्रो करेंगे तो उसको भी इस साइड से लाना होगा, राइट, सेम साइड में। तो दोनों कहीं ना कहीं मीट करेंगी। सपोज कीजिए इस पॉइंट पे दोनों मीट कर जाते हैं। दिस इज़ द पॉइंट वेयर 2 balls मीट। तो इसका मतलब ये हुआ, जितने टाइम में ये वाली बॉल यहाँ आएगी उतने ही टाइम में ये बॉल यहाँ आएगी। दिस इज सपोज सी पॉइंट। तो ये टोटल हाइट कितनी दे रखी है? 40, राइट। इसको इधर लिखो आप, दिस इज़ 40 मीटर टोटल इसकी हाइट।
एंड अपवर्ड वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, u, दिस इज u इक्वल्स टू। अब सपोज कीजिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे दोनों मीट करते हैं, तो सपोज ये हाइट x है, लेट एट x हाइट फ्रॉम द ग्राउंड टू बॉल्स मीट एंड टाइम टेकन फ्रॉम a टू c, सपोज कीजिए t सेकेंड, यानी t सेकेंड के बाद ग्राउंड से x हाइट पर t सेकेंड के बाद दोनों बॉल्स मीट करती हैं। अगर ये x है तो ये हाइट कितनी होगी, टोटल इज़ 40, दिस इज x, ये कितनी हो जाएगी 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, लेट टू balls meet at point C after t second at a height x from the ground। ये मैंने एज्यूम कर लिया, क्या एज्यूम किया मैंने कि दोनों बॉल्स जो है t सेकेंड के बाद ग्राउंड से x हाइट पर मीट करती हैं, ग्राउंड से x हाइट पर आफ्टर t सेकेंड बोथ बॉल्स मीट हियर। इसका मतलब ये हुआ कि t सेकेंड में ग्राउंड वाली बॉल c पर आती है, उतने ही सेकेंड में ऊपर वाली जो बॉल है वो c तक आएगी, मतलब सेम टाइम में दोनों बॉल्स जब c पर आएंगी तभी मीट होगा, अदरवाइज मीट कैसे हो सकता है। t सेकेंड में अगर ये यहाँ आ जाती है और वो यहाँ नहीं आ पाती है तो मीटिंग नहीं होगी उसकी। मीटिंग का मतलब है दोनों सेम उतने ही टाइम में उस जगह पहुँचते हैं। तो अब आपको t बताना है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम बताना है और ये हाइट भी बतानी है, राइट। तो दोनों के मोशन हमें एज्यूम करने पड़ेंगे, ए बॉल का भी एंड बी बॉल का, ओके। नाउ फॉर बॉल ए के लिए मैं ए की बात कर रहा हूँ, इसकी इनिशियल वेलोसिटी, ऊपर वाली वेलोसिटी 20 दे रखी है, 20 मीटर पर सेकेंड, ओके। टाइम t हो जाएगा, a की वैल्यू g हो जाएगी, g की वैल्यू हो जाएगी अपवर्ड और वो नीचे है तो 9 पॉइंट माइनस का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज ग्रेविटी, ओके। एंड डिस्टेंस h इक्वल्स टू x। सो यूजिंग फॉर्मूला s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, इसकी जगह x, u 20, टाइम t माइनस लगेगा 1/2 9.8 टी स्क्वायर ही रहेगा, कट कर दीजिए 4.9, क्लियर है ये। x इक्वल्स टू 20 t माइनस 4.9 टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ध्यान से देखिए, इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। मैं इस मोशन की बात कर रहा हूँ, अपवर्ड मोशन की बात कर रहा हूँ, बॉल ए की बात कर रहा हूँ। बॉल ए यहाँ से सी तक आती है, तो फ्रॉम ए टू सी, ये चीज़ें आप देखिए, क्वेश्चन में सब कुछ लिखा हुआ है। फर्स्ट बॉल के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन है, 20 से थ्रो किया गया है, सो इनिशियल वेलोसिटी दिस। सी तक जाने का टाइम आपको पता है, मैंने एज्यूम किया यहाँ पे t सेकंड लगेगा, ओके। डिस्टेंस मैंने यहाँ एज्यूम किया है x डिस्टेंस हो रही है, दिस इज x डिस्टेंस। डिस्टेंस पता, टाइम पता मीन्स जो हमने एज्यूम किया है, डिस्टेंस, टाइम, एक्सीलरेशन, g की वैल्यू माइनस में आएगी, और इनिशियल वेलोसिटी। सेकेंड इक्वेशन यूज़ किया मैंने, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और इससे एक रिलेशन आपको मिल गया बिटवीन x एंड t। अब ये फर्स्ट बॉल हो गया। सेकेंड में आइए, फॉर बी बॉल, फॉर बॉल बी, सेकेंड बॉल के लिए जो ऊपर से डाउनवर्ड्स आ रही है, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इसकी भी है 20, क्वेश्चन में गिवन है मीटर पर सेकेंड। जी पॉजिटिव में रहेगा, डाउनवर्ड्स है,
9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्या पता डिस्टेंस 40 माइनस एक्स, टाइम आपको पता ही है, वही सेम टाइम है। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं सेम इक्वेशन, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, डिस्टेंस 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू, ठीक है, क्लियर है ये वैल्यू इस इक्वेशन में आपको पुट करनी है। सो इन प्लेस ऑफ s 40 माइनस एक्स गिवन हियर, u t, what is u? u is 20, this is 20t plus 1 by 2 g t square, g की वैल्यू क्या है 9.8 t square, 2 से कट 4.9, so 40 minus x equals to 20t plus 4.9 t square, इक्वेशन नंबर सेकंड। अपवर्ड मोशन में एक इक्वेशन आपको मिली और डाउनवर्ड मोशन में सेकंड इक्वेशन। दोनों ही इक्वेशन x और t के रिस्पेक्ट में है, x और t के रिस्पेक्ट में है। इसमें भी x और t आया हुआ है, इसमें भी x और t है। दोनों को सॉल्व करेंगे तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड c, और ये दोनों वैल्यू आपको पता करनी है। x का मतलब ग्राउंड से किस हाइट पे दोनों मीट कर रही हैं, और t का मतलब किस टाइम पे मीट कर रही है, दोनों चीज़ें आपको इसमें बतानी है। सो सॉल्विंग दीज टू इक्वेशन, ऐड कर दीजिए दोनों को, एडिंग 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2। ध्यान से देखना, इन LHS 40 माइनस एक्स और इसमें प्लस एक्स, ऐड करेंगे माइनस और प्लस कट जाएगा, माइनस एक्स प्लस एक्स, क्या बचेगा 40। अब ये मैथमेटिकली सॉल्यूशन है, ये ज़्यादा टिपिकल नहीं है, अलग से रफ पेपर पर लिख के सॉल्व करें आप, हो जाएगा। माइनस 4.9 टी स्क्वायर प्लस 4.9 टी स्क्वायर, ऐड करेंगे दोनों का कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस 20t और 20t दोनों प्लस के ही हैं, 40t हो जाएगा। सो डिवाइड करो, t की वैल्यू आ गई 1 सेकेंड, मीन्स दोनों बॉल्स आफ्टर 1 सेकेंड बोथ द बॉल्स विल मीट, दोनों 1 सेकेंड के बाद मीट करेंगी। अब कितनी हाइट पे मीट करेंगी, तो t की वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल्स टू 20 इंटू 1 माइनस 4.9 इंटू 1 स्क्वायर, 1 ही रहेगा, तो 20 माइनस 4.9 कितना हो जाएगा 15.1 है ना भाई। 20.0 में 4.9 माइनस करेंगे, 1 आएगा, या 9 में से 5 15.1 मीटर। क्लियर, मीन्स ग्राउंड से 15.1 मीटर के बाद, और इसमें टाइम कितना लगेगा 1 सेकेंड, यानी आफ्टर 1 सेकेंड एंड 15.1 मीटर above the ground both the balls will meet. Okay, so in this video I have given 3 questions. Okay, thank you.